Good morning, children. This is class 4, Social Studies, and today I am going to start a new lesson, that is uh, Theme 3, Responsibilities of a Good Citizen. Now, here, children, you can see some changes in the uh, subject, I can say, or the matter of the lessons. Okay, because till now we were studying about history part. As in junior school, social studies is the mixture of uh, uh, history, civics, and geography. So in the beginning lessons we had studied about history part. Then in this chapter we are starting from for civics part, and in the end we will study about geography part. Okay, so his civics part is also interesting because here you will uh, the knowledge whatever you will gain from this, it will make it will help you to make good citizen. Okay, especially in this chapter we are going to study about the responsibilities of a good citizen. Children, when we are the citizens of India, and our government has given so much rights, बहुत सारे अधिकार हमें दिए हैं, तो साइड बाय साइड वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो. उन्होंने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, तो हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स कुछ उत्तरदायित्व जिसको कहते हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जो हमें करनी चाहिए एज गुड सिटीज़न. वाई? बिकॉज अगर हम इफ़ वी फुलफिल ऑल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नाइसली, so we will lead our life also in a good way, or moreover side by side we will be helping our fellow citizens also. हमारे साथ के जो देश के लोग हैं वो भी अच्छे से रहेंगे, क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम हमारी वजह से नहीं होगी. ठीक है. So here we will see first of all what is civics, because as I told you right now that we are going to study about the civics part in this chapter. So from here I will be showing you learning objects, what all we are going to learn through this chapter. Meaning of civics, importance of civics, civic sense, and care of public property. We will, in this chapter we will discuss and we will study about all these points. So first of all we will see, okay, what is civics. Now we see civics is the study of human rights and responsibilities of citizens. As I told you right now in the beginning that our government has given us some rights, है ना, उसने बहुत सारे हमें अधिकार दिए हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. साइड बाय साइड इट इज़ वी हैव टू कैरी सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो. केवल अधिकारों का ही हम फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमारी बनती हैं अपने देश के प्रति, अपने देश के नागरिकों के प्रति, हमारे पड़ोसी के प्रति, पीपल सिटीजन, अदर सिटीजन्स. सो सो मैनी थिंग्स आर देयर. ठीक है. द गवर्नेंस एंड द एनवायरनमेंट इन विच आवर सोसाइटी इज़ फाउंड. ओके. और ये सभी जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बातें हैं वो इसी इन्वायरमेंट के बीच में होते हैं, जो कि हमारी उसमें हमारी सोसाइटी के बीच में पाई जाती हैं. बिकॉज वी हैव टू लिव इन द सोसाइटी, है ना, सोसाइटी में ही हमें रहना है. वी कैन नॉट लिव अलोन. ओके. ह्यूमन बींग्स हैव द टेंडेंसी दैट वी वांट टू लिव विद द पीपल, वी डोंट वांट टू लिव अलोन. सो वी लिव इन द फैमिली, देन फैमिली मेक्स सोसाइटी, ओके, देन कम्युनिटी, देन स्टेट, देन कंट्री. इस तरह जो उसका पोर्शन है, उसका जो साइज़ है वो बड़ा होता चला जाता है. ठीक है. सो here we will see in civics we study about number 1, 2, 3, 4 points are here. The environment in which we live in. civics में हम पढ़ते हैं कि कैसे environment में हम रहते हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारा रहने का सिस्टम क्या है, किस टाइप की किस जगह में हम रहते हैं. आइदर वी आर लिविंग इन द
सिटी और इन द विलेज, विलेज की लाइफ फ़र्क तरीके की होती है, एंड इन द सिटी वी हैव डिफरेंट लाइफ। ओके, तो इन्वायरमेंट माने वहाँ का माहौल कैसा है, हाउ द पीपल हु आर लिविंग, हाउ दे रिएक्ट, what type of behavior they have, what type of people they are who live in our neighborhood especially. Okay, because wherever we live we get some people in our neighborhood, है ना, पड़ोस में हमारे कुछ ना कुछ लोग रहते हैं, तो वो इन्वायरमेंट हमारा बनता है कि कैसे टाइप के लोगों के बीच में हम रह रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इन इन्वायरमेंट, मीन्स कि माहौल कैसा है वहाँ का। इफ़ यू लिव इन ए गुड इन्वायरमेंट यू विल डेफिनेटली बी ए गुड पॉलिश्ड civilized person, and if you any child who doesn't live in a good environment, उसके घर का माहौल अच्छा नहीं है, सपोज़ उसके पड़ोस में लोग अच्छे नहीं हैं, तो that child will not learn good habits, है ना, वो उसका environment अच्छा नहीं है तो वो ख़राब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, he will not form good habits. ओके, और जब वो सोसाइटी में आगे जाएगा तो सब ये कहेंगे कि इसको कोई मैनर्स नहीं आते, इसको कोई गुड हैबिट्स नहीं हैं, ये हमारे बीच में उठने बैठने लायक नहीं है, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स पीपल से। ओके, सो एनवायरनमेंट मेक्स सो मच डिफरेंस ऑन ए लाइफ ऑफ एनी चाइल्ड। ओके, गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट, इसमें भी यही है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसी है और उसका गवर्नेंस कैसा है। ठीक है, वो किस तरह से चलाती है, वो क्या चाहती है हमसे और क्या हमें अधिकार देती है, क्या हमसे एक्सपेक्ट करती है गवर्नमेंट। ओके, देन ह्यूमन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स। चिल्ड्रन, देयर आर सम बेसिक ह्यूमन राइट्स जो कि अब बहुत ही ज़्यादा, अभी तो इन ह्यूमन राइट्स के बारे में इन द मॉडर्न टाइम बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। मीन्स कि पहले तो ये होता था कि जे हमारे एक बीइंग ए ह्यूमन बीइंग वी हैव सम राइट्स, हमें कुछ अधिकार हैं, जैसे हम अगर हमने जन्म लिया है तो हमें ज़िंदा रहने का अधिकार है। ठीक है, ठीक है, हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है, हर बच्चे को शांति से रहने का, उसको कोई कष्ट ना पहुंचाए, उसको सुख से रहने देने का अधिकार है। दीज आर कॉल्ड ह्यूमन राइट्स। कोई किसी को टॉर्चर नहीं कर सकता, कोई किसी को बंदी बना के नहीं रख सकता, किसी स्पेशली टू द स्मॉल चिल्ड्रन और टू द फीमेल्स स्पेशली। तो ये ह्यूमन राइट्स हैं। ह्यूमन राइट्स का आपने सुना, आपने शायद अभी छोटे हो, आप इतना नहीं जानते हो, कमीशन पूरा बना हुआ है ह्यूमन राइट्स का। और अगर कहीं भी वो लोग देखते हैं कि कुछ भी गलत हो रहा है, किसी के संग कुछ टॉर्चर हो रहा है, ये कोई इनजस्टिस हो रहा है, बेइंसाफ़ी हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो ह्यूमन राइट्स वाले पूरा अधिकार रखते हैं उस मामले में इंटरफेयर करने का और उस इंसान को अधिकार दिलाने का, उसके लिए उसकी तरफ से वो लड़ाई लड़ते हैं और उसको वो अधिकार दिलाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमन राइट्स, है ना। कुछ इंसानों को कुछ अधिकार हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता उनको। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीज़न, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में तो हमने आपको बताया कि एज बीइंग ए गुड सिटीज़न हम कैसा बिहेव करें जिससे कि हमारे फेलो सिटीज़न जो हैं हमारे साथ के, वो परेशान ना हो हमारी वजह से। हम वी शुड प्रूव टू बी गुड सिटीज़न, जो हम अपने देश को किसी तरह से हार्म ना पहुँचाएँ, अपने देश की प्रॉपर्टी को हार्म ना पहुँचाएँ, अपने देश के लोगों को हार्म ना पहुँचाएँ। हार्म मीन्स पहुँचाना माने नुकसान पहुँचाना। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि हम आप लोग पढ़ेंगे भी इसमें आगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सिटीज़न। ठीक है, देन सिविक्स में और हम क्या पढ़ते हैं, चौथे नंबर पे हम देखेंगे सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और स्टडी में हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने समाज को, अपने सोसाइटी को, अपने जहाँ हम रहते हैं उसको कैसा ऊंचा उठा सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। बिकॉज चिल्ड्रन, इंडिया इज़ सच ए वास्ट कंट्री, हमारा देश बहुत बड़ा है ना, तो अगर हम सारी बातों की जिम्मेदारी अपने गवर्नमेंट के ऊपर ही डाल दें कि गवर्नमेंट ही करेगी तो कुछ होगा, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। सो दिस इज़ नॉट गुड, है ना। हमें अपने देश को उठाने के लिए इन एवरी सोशल मैनर और इकोनॉमिक, माने कि अपने देश को की व्यवस्था को बढ़ाने, अच्छा करने के लिए, आर्थिक व्यवस्था जिसको कहते हैं, इकोनॉमिक मीन्स रुपए पैसे समृद्ध हो, व्यापार अच्छा हो, ये सब हो, मतलब बहुत अच्छे से सब काम करें और अच्छे से जीवन जिएं। ठीक है, तो इसको इकोनॉमिक कंडीशन कहते हैं कि एक अच्छा जीवन जीना और सबके पास भरपूर इतना हो कि अच्छे से जीवन जी सकें, बहुत गरीबी की हालत में, बहुत गिरी हालत में ना रहें। तो ये डेवलपमेंट कैसे हो, तो इसके लिए और भी चीज़ें हैं कि
गुड एजुकेशन हो, गुड कम्युनिकेशन हो, ये सब चीज़ें भी हैं आपस में। और कल्चरल माने हमारे कल्चर में भी चीज़ें आती हैं। हमारा जो कल्चर है मीन्स जो हमारी संस्कृति है, जो हमने हमारा विच इज़ रिलेटेड टू द रिलीजन ऑल्सो, धर्म से भी संबंधित है ना, जुड़ा हुआ है धर्म से, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, अपने रीति रिवाज मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, लोगों से संबंध रखते हैं, लोगों से व्यवहार कैसा करना है ये हम करते हैं। हमारे पुराने जो कल्चर रहा है, जो कि संस्कृति रही है, वो हमने हमें क्या सिखाया है, ये सब हम इसमें उसके अकॉर्डिंग सिविक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, दैट ऑल कम्स कि पुराना हमारी संस्कृति कैसी थी इन द ओल्डन टाइम, पुराने समय में उसने हमें क्या सिखाया है कल्चर में। तो उसमें सभी चीज़ों की बातें आ जाती हैं कि किस तरह का व्हाट वाज द एजुकेशन सिस्टम इन द ओल्डन टाइम, हमारे देश में स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट आवर कंट्री ओनली। पहले कैसा था, जैसे फॉर एग्जांपल पहले गुरुकुल होते थे, अब स्कूल हैं, तो देयर इज़ ए डिफरेंस। गुरुकुल में गुरु जो माता पिता होते थे वो अपने बच्चों को गुरु को सौंप देते थे, वो अपने गुरुकुल में उनको रखता था और पूरी शिक्षा देता था, हर तरह की शिक्षा उनको मिलती थी। अब नाउ द थिंग्स आर डिफरेंट, है ना। तो दैट वाज द कल्चर ऑफ दैट टाइम कि बच्चों को गुरुकुल जाना है। अब जो बात है वो फ़र्क है, बच्चे घर पे रहते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में भी जितना कुछ सीखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज़ दे डू, सो दैट इज़ कॉल्ड कल्चर। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट हम लोग और डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग सिविक्स, सिविक्स की क्या इम्पोर्टेंस है, अगर हम पढ़ते हैं उसको तो हम क्या जानते हैं, उसके बारे में हमारी क्या नॉलेज बढ़ेगी, हम क्या बातें नहीं जान जाएंगे, ये हम इसमें देखते हैं कि व्हाट नॉलेज व्हाट कैन वी गेन थ्रू स्टडिंग सिविक्स। सिविक्स एज ए सब्जेक्ट वी कैन से, सिविक्स इज़ एज ए सब्जेक्ट चिल्ड्रन। अभी आप छोटे क्लास में आपकी बुक जो है वो तीन सब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशन है, जोग्राफी, सिविक्स एंड हिस्ट्री। व्हेन यू विल गो इन द अपर क्लासेस तो आपका जोग्राफी जो है स्पेशली इन क्लास 6 जोग्राफी सेपरेट हो जाएगा और हिस्ट्री और सिविक्स पार्ट कंबाइंड रहेगा। फिर और ऊपर जाएंगे अगर 11th में तो देन जोग्राफी तो है ही सेपरेट, हिस्ट्री और सिविक्स भी सेपरेट हो जाएंगे, हिस्ट्री अलग सब्जेक्ट बन जाएगी और सिविक्स अपना इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो सब्जेक्ट्स अभी छोटे हैं तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स का ज्ञान जो है वो देना है, इसलिए दे हैव कंबाइंड दीज सब्जेक्ट्स इन वन बुक। बट लेटर ऑन ये तीनों सब्जेक्ट सेपरेट हो जाते हैं इन हायर क्लासेस, तो आप हर सब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, मोर वाइड नॉलेज यू विल हैव। तो अभी हम यहाँ देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग सिविक्स इन सम पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स आर हियर। टू अंडरस्टैंड ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स मैंने आपको अभी बताया है कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, माने कि हर व्यक्ति के जो अधिकार हैं जो कि उसको जन्म से ही मिले होते हैं। ठीक है, जिनका कोई हनन नहीं कर सकता, मतलब जिनका कोई ख़त्म नहीं कर सकता, जिन पे कोई रोक नहीं लगा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले लोग जो होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, वो उस चीज़ से उस इंसान को बाहर निकालते हैं। सपोज़ किसी ने किसी को बंदी बना के रखा है, जैसे गुलाम की तरह रखा हुआ है किसी इंसान को, और वो उससे गुलाम की तरह काम लेता है, तो ह्यूमन राइट्स वालों को अगर पता चल जाता है कि किसी घर में कोई ऐसा इंसान बंदी बन के रह रहा है जो कि बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है और वो एक गुलाम की तरह रह रहा है और उससे मनचाहा काम करवाया जा रहा है और उसके साथ मनचाहा बुरा व्यवहार किया जा रहा है मालिक के द्वारा, तो वो ऐसे लोगों को वहाँ से छुड़ा लेते हैं और निकाल देते हैं, कहते हैं कि नहीं ये अगेंस्ट है ह्यूमन राइट्स के, वो इंसान है, उसको अच्छे से जीने का अधिकार है। आप उसको गुलामी प्रथा तो हमारे देश में है नहीं, स्लेवरी सिस्टम तो है नहीं, तो वाई यू आर कीपिंग ए पर्सन लाइक ए स्लेव। तो वो ऐसे लोगों को बाहर निकाल देते हैं, वहाँ से वो जाते हैं और धावा बोल देते हैं उस इंसान के घर में और केस भी चला देते हैं, अरेस्ट भी कर लेते हैं कभी कभी, और पूरा केस चल जाता है इस इंसान के ऊपर कि वाई आर यू डूइंग सो, आपने टॉर्चर कैसे किया एक इंसान के ऊपर, आपने कैसे इसको बंदी बना के रखा, आप उसके संग कैसे जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप उसको मार पीट भी रहे हैं या चोट पहुंचा रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं और उससे काम भी ले रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं फिजिकली मेंटली, एक तरह से बिल्कुल जेल की बंदी बना के रखा है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं ख़ास तौर से वो ह्यूमन राइट्स वाले उनको ठीक करते हैं, उनको निकालते हैं उसमें से बाहर। तो हमें ये जानना है कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं। जैसे कि सिंपली हमने आपको बताया है कि बहुत सारे ह्यूमन राइट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। देन नंबर 2, टू अंडरस्टैंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए सिटीजन, ऑफ सिटीजन्स। इसमें हम
हमने आपको बताया कि सिर्फ गवर्नमेंट हमको राइट्स ही नहीं देती, बल्कि हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। माने ड्यूटीज़ माने कोई हमारी दायित्व होते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ जिम्मेदारियाँ जो हमें करनी हैं एज सिटीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है। टू अंडरस्टैंड इन्वायरमेंट इन विच वी लिव इन, सिविक्स जो है हमें उस इन्वायरमेंट को समझने में हेल्प करती है जहाँ हम रहते हैं। ठीक है। अगर हमें इन्वायरमेंट को समझ है कि कैसे माहौल में रह रहे हैं और हमें कैसे बिहेव करना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कई बार कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि हाउ दे हैव टू बिहेव विद देयर नेबर्स, विद द पीपल ऑफ द सोसाइटी। वो उल्टा पुल्टा व्यवहार करने लगते हैं जिससे कि दूसरे लोगों को कष्ट होता है, या बोल के ही गलत व्यवहार करते हैं, या अपने कामों से गलत व्यवहार करते हैं, तो उससे दूसरे लोगों को कष्ट होता है। ठीक है ना, दे आर इन ट्रबल। तो हम लोग कहते भी हैं कि वो इस इंसान की वजह से तो हम लोग परेशानी में हो गए, भाई कितना ख़राब इंसान है, वी से लाइक दिस ना, क्योंकि वो हमें कष्ट पहुंचा रहा है, या हमें नॉट ओनली हमें टू वन फैमिली और वन पर्सन, वो पूरी सोसाइटी को कष्ट पहुंचा रहा है। दैट इज़ हिज बिहेवियर इज़ हार्मफुल फॉर अदर और डेंजरस ऑल्सो और द होल सोसाइटी। ओके। देन टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी इन आवर सोसाइटी, सिविक्स जो है हमें सिखाती है कि हम अपनी सोसाइटी में कैसे पीसफुल इन्वायरमेंट को रखें और सिक्योरिटी अपनी भी करें और दूसरों की भी करने दें। कोई ऐसा काम ना हो कि जिससे किसी की सिक्योरिटी, चिल्ड्रन व्हेन वी स्टे इन द सोसाइटी वी नीड द सिक्योरिटी ना ऑफ आवर लाइफ, आवर प्रॉपर्टी, आवर हाउस, आवर व्हीकल्स, एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज़ वैल्यूएबल। ओके। हम चाहते हैं कि उसकी सिक्योरिटी रहे, कोई ऐसा इंसान ना हो, nobody should cause any harm or danger to our life or our property। जान माल की सुरक्षा बोला जाता है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें सिविक सेंस है तो हम जानते हैं कि ना तो हमें किसी की जान माल को, स्पेशली टू द लाइफ एंड टू द प्रॉपर्टी, वी शुड नॉट कॉज एनी हार्म। ये सेंसिबल सिटीज़न की ड्यूटी होती है। दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ ए सेंसिबल सिटीज़न, कि भाई हमें दूसरे को भी पीसफुली रहने देना चाहते हैं। अगर हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे, दैट पर्सन विल बी इन ट्रबल ना, उसको प्रॉब्लम होगी, उसका लॉस होगा। तो हम दूसरों को भी चैन से रहने दें और हम भी चैन से रहें। इसके लिए एवरी वन शुड हैव दिस सिविक सेंस, यानी कि उसको पता होना चाहिए कि हमें कैसे बिहेव करना है टू लिव इन द सोसाइटी। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ टू अंडरस्टैंड एंड अपहोल्ड आवर कल्चर। अब हमने आपको बताया जैसे कि हमारा पुराना कल्चर क्या है, जो पुराने समय से हमारी संस्कृति चली आ रही, कल्चर चला आ रहा है कि कैसा, और बहुत अच्छा कल्चर हमारे देश का रहा है। फ्रॉम द वेरी ओल्डन टाइम्स इंडिया बहुत अच्छे कल्चर वाला कंट्री माना जा रहा है। हम्बल पीपल, कल्चर्ड पीपल, और बहुत ही टॉलरेंस इंडिया के लोगों के अंदर है। और हम लोगों के अंदर ऐसा बिहेवियर नहीं है कि हम एकदम से किसी देश पे हमला कर दें, वहाँ के लोगों से नफ़रत करें या उनको मारें या कुछ भी करें। इंडिया हमेशा शांति की बात करता है और मित्रता की बात करता है। ठीक है। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर कल्चर, पीस एंड फ्रेंडशिप एंड हार्मनी। ठीक है। तो ये हमारे दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर कल्चर विच वी अंडरस्टैंड थ्रू आवर कल्चर, एंड वी वॉन्ट टू कीप इट फॉर द कमिंग जनरेशन्स ऑल्सो। हम ये नहीं चाहते कि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो उसको भूलें। तो हर जनरेशन का दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द एल्डरली पीपल टू पास द बेसिक थिंग्स ऑफ द कल्चर टू द न्यू, to their children, we can say, to young children, because in this way these things will carry from one generation to another, और वो हमेशा they will not be vanished from our culture or our country, we can say। कल्चर को ज़िंदा रखना है, जो हमारा अच्छा कल्चर की स्पेशली जो गुड पॉइंट्स हैं, गुड थिंग्स हैं, गुड बिहेवियर है, जो वट एवर इज़ गुड, दैट शुड बी मेंटेन्ड, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। ओके। सो चिल्ड्रन, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। And one more point is there on this right side. Let me complete it. To establish good relationship and respect. One more point is here on this side, कि हमें establish करना है good relationship and respect.
children, everyone knows, everyone keeping good relationship is a good point for everyone. अच्छा संबंध सबके साथ रहना से सभी लोगों के लिए खुशी का कारण होता है और हैप्पीनेस का और पीस का कारण होता है. अगर संबंध अच्छे नहीं होते हैं, आपको पता है जैसे दो देशों के बीच में अगर संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो उन दोनों में वॉर होती है. अगर पड़ोसी नेबर्स के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है तो झगड़ा होता है. अगर फैमिली मेम्बर्स में रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं देन फाइट गोज़ ऑन, क्वारल, झगड़ा, फाइट वो होता है. तो कैसे रिलेशनशिप को अच्छा रखना है, गुड रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली, बिटवीन द सोसाइटी, नेबरहुड एंड बिटवीन द कंट्री. ठीक है. एंड रिस्पेक्ट से क्या मतलब है यहाँ पे कि हमें सबकी इज़्ज़त करनी है. ये कहा जाता है ना कि जैसे आप इज़्ज़त करोगे तो इज़्ज़त मिलेगी, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी. इफ़ यू विल नॉट बिहेव इन विद एनी पर्सन और you will not give respect to any person, then you will not also not get respect from that person also in response. है ना. आप ख़राब बिहेव करोगे तो दूसरा भी आपके संग ख़राब ही बिहेव करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू give respect to other persons, then only we will receive respect from other persons also. हमें रिस्पेक्ट करना आना चाहिए. रिस्पेक्ट स्पेशली यू चिल्ड्रन, स्पेशली आप छोटे बच्चे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो घर में आपके बड़े हैं, योर एल्डर ब्रदर सिस्टर, देन योर पेरेंट्स, देन योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी एल्डर पर्सन इन योर नेबरहुड, इन टीचर्स इन द स्कूल, you must give respect to all of them. You must respect your leaders also, leaders of the country, religious leaders also. जैसे कि हमारे जो रिलीजियस लीडर्स कौन होते हैं, जैसे कि हिंदूज़ में पुजारी होते हैं जो हमें धर्म की बातें सिखाते हैं. वी शुड ऑल्सो गिव देम रिस्पेक्ट. है ना. धार्मिक जो लोग होते हैं, धर्म की बात सिखाने, धर्म के जो लीडर हम लोग उनको कहेंगे. जैसे कि हर धर्म में कुछ लोग होते हैं जो कि हमें धार्मिक बातें और जो हमारी जो होली बुक्स होती हैं उनके बारे में ज्ञान देते हैं. ठीक है. तो आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब कि मैं तो वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू दोज पीपल ऑल्सो. ठीक है. सो ऑल राइट, वी विल डिस्कस नाउ in the next video. I think it is enough for today. Okay, thank you.